इधर बैठ जाता हूँ सर, मैं एक छोड़, वरना दूसरों को कहेंगे ये भी रख लें। लग रहा है आपको ये ऐसा मोटिवेशन स्पीकर है, ये हमें मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आपसे भी काम करवाएगा सर, एक पैड आपको चाहिए। अच्छा, ये भाई भाई में तो नहीं। Should I start? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome on behalf of the Chairman of Telka to the most awaited interactive session. We will start the session with the recitation of Holy Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल-माऊन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। भला तुमने उस शख्स को देखा जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उल यतीम। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। और मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीन हुम युराऊन। जो दिखावा करते हैं। वयमनऊनल माऊन। और मामूली जरूरत की चीजें लोगों को वक्ती तौर पर देने से गुरेज करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I'm overwhelmed to have a whole Telka family congregated here today in this interactive session, which is related to the powerful insight on how to strive and thrive during challenging times. Ladies and gentlemen, as we know that we're passing through a very hard time as this global coronavirus continues to spread. So do anxieties about COVID-19 and the illness it causes. This pandemic may be stressful for people. Fear, anxiety about a new disease as what could happen can be overwhelming and cause strong emotions in adults and children. Public health
Public health actions, such as social distancing, can make people isolated and lonely and can increase stress and anxiety as well. However, these actions are necessary to reduce the spread of COVID-19. Coping with stress in a healthy way will make the people we care about and your community stronger. Having said that, we are very blessed today to have Mr. Kamran Ahmed Siddiqui with us on board from UAE, who is a qualified engineer and Masters in Business Administration, a positive influencer, author of 2 inspirational books, Leadership Peak Performance Coach, Human Resource Consultant, Six Sigma Black Belt Professional, a talent digger, and the last but not the least, a motivational speaker. The forum is being formally handed to Mr. Kamran Ahmed Siddiqui. All right, Ji, thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start with a prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी जुबान के लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. I'm really thankful for NEPRA and all the team who have been there for spending time with me. It's a great honor for me to talking to you. While I'm been outside the country for quite a number of years, it's always been a matter of great pleasure for myself, just with a sense of contributing something back to my people, back to my country. And this is one of the event, inshallah, we are going to start something of for value we are going to talk about. One of the important things that I would request to all of my attendees who have been here, it's not going to be like a typical some sort of lecture. The most important aspect what I'm going to share is that over a period of time, when we have gone through this challenging time, it is various companies over here which I've been able to interact, and there was a similar scenarios which we have come across, and there was some sort of the things which we applied, and some sort of psychological, you can say, the shift of sort of paradigm shift we have took, and this has proven results in terms of employee engagement, in terms of bringing something of value for the people. So today, inshallah, we are going to talk about from this angle. Very interesting terminology. It has been coined in 1980s, 1990s, which is said it's a VUCA world. So when you say what is a VUCA world, VUCA is said to be it's volatile, it's uncertain, it's complex, and it's highly ambiguity has been there. That was been the terminology initially took by US Army at that time, and then it has been took in early 2000 by the business world. I think as we have gone through this COVID scenario, this has proven to be very much, I'm going to say, relevant on that part that we have been and we are being going through that process. Now, what has been happened practically? If I quote an example, and this is something that's been happening around the different industries right now over here as well. When the people are being asked to start working from home, now it's a bit of a challenging situation started happening because whosoever has been asked to go back and started working from home, now this is something which people were not very much familiar with. So the challenge started happening was, number one, usme, I should highlight on that part ke usme kya hua ki the people who have been working at home, now they started thinking, oh, might be it is a sort of a day off for them, or it's like a vacation time for them. And it was very hard to give that realization back to the people. Now you are still working. We have just changed the pattern. So that was one of the challenge which we have seen in the companies which has been happened. Number two, यहाँ पे और भी चीजें आइडेंटिफाई हुई कि बहुत सारी चीजों में हम लोग इतने टेक्नोलॉजी ट्यून नहीं होते, and then to rely on a technology was another challenge. It has been emerged as well. Then there was an instance it had been happened because when you have been working from your office, of course you have been very much clear what is the timeline in which you have to be worked. But once you get back to home, now the challenge started happening that it is very hard to draw a line.
where you have to stop and where you have to actually work on to आपका जो घर का मामला है आपको और जो ऑफिस का मामला है, it's been very difficult started happening with the people कि कहाँ पे उस लाइन को ड्रॉ किया जाए जहाँ पे हमें पता लगे. फिर चूंकि it was a disruption, it has been happened, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि this is a new normal. तो the problem started happening कि आप इस न्यू नॉर्मल में बहुत सारी चीजें, चूंकि अभी एक ट्रांजिट मोड में है, तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न ये भी हाईलाइट हुए. The people were not happy with the situation because they said might be they are being overloaded on that instance. Some persons are not been there. Some sort of a rotational sort of stuff has been happened. Belonging to what I've seen in the oil and gas sector as well. वो लोग जिनकी rotation 4 days off, 4 days work होता था, they are being asked to stay in the site for 28 days, 28 days for work, 28 days to coming back. And even if they are going to go back, they have to actually they have to quarantine themselves. It was a big साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पीपल. उनकी जो और फिर इसके साथ साथ जो बहुत सारी चीजें चैलेंज हुई वो ये हुआ कि आपकी जो लाइफ में एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी आ गई, और फिर ये बहुत सारी जो खबरें और स्टैटिस्टिक्स और अननोन सॉर्ट ऑफ थिंग, इट हैज क्रिएटेड अ बिट ऑफ चैलेंज फॉर एवरी पर्सन एट ऑल द लेवल. अब मैं यहाँ पे अब आपको जो चीज हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि मैं एक मेटाफोर यूज करता हूँ. अब हम इसको सोचते हैं कि इस मेटाफोर में क्या हुआ और what exactly has been happened. So for example, I would like to show you something. Now this is an apple in my hand. If I ask you, if I squeeze that apple, I can get the juice of that apple. Now if I take an orange and if I squeeze it, I can get the orange juice out of it. Now this metaphor, why I've been using like this is, practically speaking, in that challenging situation, it happened कि जब हम लोग एक चैलेंज में गए हैं, so whatsoever our real self was inside, what was my real matter inside, during that stressful situation, I'm being exposed to myself. ये चीज हुई है हकीकत में, और उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ, जो चीज मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, जो चीज हमने ऑब्जर्व की, कि इस पूरे जो प्रोसेस में द पीपल हु आर बीइंग पॉजिटिव बिफोर कोविड-19, देखने में आया दिस पीपल बिकम मोर पॉजिटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग कोविड-19. जो लोग पहले नेगेटिव थे वो और ज्यादा नेगेटिव हो गए, जो लोग पहले कंप्लेनिंग थे वो और ज्यादा उनकी कंप्लेन बढ़ गई, और जो लोग they were having an attitude of gratitude, they become more gone into that side. So what is, first of all, COVID-19 has truly reflect our genuine character to ourselves. That is one thing what we have discovered about ourselves, how we respond to a stress, how we respond to that similar situations onto that. Now the question is, अब यहाँ पे हमें उस चीज पे जाते हैं कि जनाब कोविड-19 की सिचुएशन ने बहुत ज्यादा हमारे लिए एक सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं. एवरी डे व्हेन वी हमें मीडिया से न्यूज मिलती है, हमें लोगों से न्यूज मिलती हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट दैट, देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी. वी आर नॉट प्रीटी मच श्योर ये कब चीज खत्म होगी, कब चलेगी, कब होगा, किस तरह का ये मामला चलेगा. तो मेनी ऑफ द पीपल दे हैव रिपोर्टेड कि दे हैव गॉन इनटू अ स्ट्रेस लेवल. उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया. And many of the people, they said even beyond stress they feel depressed about it. सबसे पहले हम इसको समझते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रेस ये होती क्या चीज है, और ये डिप्रेशन क्या चीज होती है, इसके साथ क्या लेवल है. इसको सादा अल्फाज में ये समझ लें कि हम में से हर इंसान के जहन में अपनी जिंदगी के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से एक सर्टन मेंटल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम कैरी करते हैं अपने जहन के अंदर. और हमारी जो जिंदगी है, इट्स एक्चुअली अ ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स व्हिच वी कैरी विद इन आवरसेल्फ. सो मान लीजिए मैं अपने एक सर्टन रिलेशंस है मेरी अपनी फैमिली के साथ, सो दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय मेंटल स्टैंडर्ड्स. If I'm being on certain income level, this is actually a reflection of my mental standards. If I'm meant to say the way I'm being having my lifestyle, this is certain mental standards. जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, जब आपको ये पता लगे कि मेरे जो मेंटल स्टैंडर्ड्स हैं अबाउट माय जॉब, अबाउट माय रिलेशन, अबाउट सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द पीपल एटसेट्रा, और जो मेरी एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसके अंदर गैप आ चुका है या उसके अंदर गैप आ रहा है. If this is the situation what has been happening, it means I'm being in a stressful state. अच्छा, जब तक मैं स्ट्रेसफुल स्टेट में रहता हूं तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि सम डे सम टाइम दिस सिचुएशन विल रिवर्स बैक. यानी जिस अंदाज में मैं काम कर रहा हूं, थोड़ी सी डिसरप्शन हो गई है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड इन टाइम, मे बी अ मंथ और सो,
we will revert back, we will come back to the same situation. Relationship हैं, disrupt हैं, boss के साथ कोई मामला बिगड़ा, but we are being able to make it up. As far as I'm living with that positive expectancy that this situation is going to be reversed back, I'm in a stressful state. Now, interesting part क्या होता है? जब ये stressful state prolong करती है for certain period in time, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिल्यूट होना शुरू हो जाती हैं, और मुझे ये चैलेंज लगता है कि नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रिवर्सल इनटू दैट. जब मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी वो गैप बड़ा हो जाता है, दैट गोज अप टू दैट एक्सटेंट, जहां पे अब नाउ आई रियलाइज कि इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्स बैक, एंड व्हाट इज माय मेंटल स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट इज माय करंट रियलिटी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हिच इज इररिवर्सिबल. द पीपल एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. That has been the linked part onto that their mental standards and their current reality is a lot of challenge. That is the reason. जब लोगों से ये कहा गया कि भाई आप जाके घरों में काम करें, या you have to be apply from there, and this sort of uncertainty, first of all, initial 1 month or so, the people are being in a stressful state. But what they experience after a certain period in time, when wave after wave, they are listening the news, oh, that might be something where it has to be, I don't think it is going to be reversed back. We have to do something, and this is the situation. अब ये चैलेंज है हमारे सामने. ना क्वेश्चन इज, जो हमारे लिए क्वेश्चन है कि अगर हम इस टाइप की एक अनसर्टेनिटी में हैं, या हम इस टाइप की सिचुएशन में हैं, या वी हैव एक्सपीरियंस दैट पार्ट ऑफ इट, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू. और यही आज का टॉपिक है कि अगर हम इस सिचुएशन में हैं तो सिचुएशंस के हवाले से तो बात करना बहुत आसान है. असल बात क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस इन विच द थिंग्स कैन बी रिवर्स बैक, एंड हाउ आई कैन ऑपरेट माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो बात करूंगा, एक बड़ी खूबसूरत चीज है जिसको वर्ड को बोला जाता है, देयर इज अ पावर ऑफ रीफ्रेमिंग. बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम रीफ्रेम करते हैं. मैं आपको एक अपना जाती वाकया बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, और उससे आप देखेंगे कि हाउ मच अ स्मॉल शिफ्ट कैन गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अ डिफरेंट इनसाइट इन लाइफ. पिछले साल की बात है, मेरी वालदा यूएस से ट्रेवल करके आई, यहाँ से उन्हें कुछ अर्सा मेरे पास रही, फिर पाकिस्तान जाना था. लेकिन उनका एक जो चैलेंज उनके साथ था वो ये था कि उन्हें जहाज के सफर से बहुत ज्यादा डर लगता था. और मुझे याद है कि मैं लास्ट ईयर उनको जिस वक्त एयरपोर्ट लेकर जा रहा था, तो मैंने देखा कि उनकी जो स्ट्रेस है उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा है, और बड़ी उनकी जो कैफियत हैं बड़ी वो घबराहट वाली है. तो मुझे थोड़ा सा ये भी हुआ, मैंने कहा कि अभी तो इतना लंबा ये सफर करके भी आई हैं यूएस से, और फिर अभी भी इनके अंदर कुछ थोड़ा सा खौफ है. तो मैं I was not pretty much sure कि what should tell my mother कि जिससे इनका खौफ कम हो जाए. And I've just been into the thought process कि what should I do? How can I address that? And I started thinking about that. उस वक्त मुझे ख्याल आया, उस वक्त being as an NLP practitioner मुझे ख्याल आया कि I should apply some sort of reframing technique, and I see how it's going to be work over there. So खैर जनाब, हम लोग जाके लॉबी में बैठ गए. अब लॉबी में मैं देख रहा हूं कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका जो टाइम है और वो थोड़ा सा उनकी परेशानी बढ़ रही है, बट इंस्टेंटली अ थिंग केम इनटू माय माइंड. मैंने अपनी वालदा को हाथ पकड़ा, मैं उन्हें ले गया. वो जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारी वो जो फ्लाइट्स के डिपार्चर और आने और जाने का अराइवल का जो स्केड्यूल होता है, तो मैं उनके पास पहले जब मैं वहां बैठा होता तो मैंने उनसे पूछा आपकी परेशानी किस बात की है. तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये फ्लाइट होती है, उसमें ऐसा टर्बुलेंस आ सकता है, उसमें ये होता है और वो होता है. तो इस टाइप की वो मुझे बात बता रही थी. इन द मीन वाइल आई जस्ट टुक हर टू द बोर्ड. तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि जी ये आप इस बोर्ड को देखें, इस बोर्ड में यहाँ पे ये सारा स्केड्यूल उन फ्लाइट्स का है जिसने आज के दिन इस एयरपोर्ट पे आना है, और एक दूसरा बोर्ड है जिसमें यहाँ से जो इनका जो डिपार्चर होगा वो यहाँ पे मौजूद है. तो पहले तो वो थोड़ा सा शॉक में आ गई कि इतनी फ्लाइट्स जो हैं इन वन डे इट लैंड ओवर हियर. मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, और यहाँ की जो बहुत बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और यहाँ पे तो हर मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 3 मिनट में देयर आर फ्लाइट्स आर कमिंग इन एंड फ्लाइट्स आर गोइंग आउट. और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा द सेम फ्लाइट विच इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू, जिसमें आपको ट्रेवल करना है, ये वही फ्लाइट है जो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सेफली लैंड हुई, परसों भी हुई, 1 महीने से हो रही है, 1 साल से हो रही है. अल्लाह ने चाहा तो ये भी फ्लाइट इज गोइंग टू हैव अ सेफ जर्नी, और इसमें जो आगे जो है उसमें. तो मैंने देखा थोड़ा सा वो अब एटीज हो रही है. फिर मैंने उनको स्केल अप किया. मैंने कहा आपको पता है दुनिया भर में कितने एयरपोर्ट हैं? तो उन्होंने कहा अंदाजे से कोई बताया मुझे. मैंने कहा जी इट मस्ट बी इन हंड्रेड्स.
आप अंदाजा करें कि अगर उन हंड्रेड्स ऑफ एयरपोर्ट पे, और दैट इज द सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम ऑफ जिसमें फ्लाइट उतर रही हैं और चढ़ रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक दिन में एवरेज कितनी फ्लाइट्स हैं जो टेक ऑफ करती हैं और टेक ऑन करती हैं, और पूरे साल में कितनी करती हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम यू हर्ड अबाउट के सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट हैपन? अच्छा, जिस वक्त मैंने उनको ये वाला मैंने प्रोस्पेक्टिव उनके सामने रखा, तो मैंने देखा कि नाउ शी इज गॉन इनटू अ डिफरेंट स्टेट. अब उनको लगा कि नाउ दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी एन इजी राइड एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ. खैर, उसके बाद उनका वो फ्लाइट अनाउंस हो गई, चली गई. उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि मैं बाद में भी उनका ट्रैवल वगैरह, जब मैं पहुंचा पाकिस्तान में, तो मुझे मिलते साथ उन्होंने एक बात बताई. उन्होंने कहा कि कामरान, आफ्टर दैट एक्सपीरियंस जो तुमने मुझे उस दिन बताया, आई फील सो मच कंफर्टेबल in every flights, कि बल्कि मैं तो now I started telling the other people who are having a fear of flying and I'm telling them this formula. तो मुझे हंसी आ गई. मैं कहा यार this work very well. देखिए, मैं आपको जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि each and everything is just stay in our head. There's nothing outside. ये जो कुछ हो रहा होता है, this is all happening within ourselves. मैं इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो बुक भी रेफर करूंगा, एक वाकया बताना चाहूंगा. 1940s की बात है. इज अ स्टोरी इन 1940s. एक साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल. ये ऑस्ट्रिया का एक उस वक्त प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट था. तो जिस वक्त वो हॉलोकॉस्ट हुआ, जिस वक्त वो नाजीज के वो जो कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह में वो बहुत सारे लोगों को ले गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली इसको भी अब इसकी फैमिली के साथ उन्होंने इसको अलहदा भी कर दिया. इसको लेकर तो जितने उसके जो मोस्ट नोटोरियस कंसंट्रेशन कैंप था उसके अंदर इसको डाल दिया. अब इसकी फैमिली भी इससे जुदा हो गई, जिससे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई. वो सब पेरिश हो गए. इसका जो सोशल स्टेटस था वो भी इंस्टेंटली जीरो हो गया. इसकी आइडेंटिफिकेशन भी खत्म हो गई. इसको हर चीज जो है इसके लिए टोटली शैटर्ड हो गई. एंड वंस दे हैव पुट हिम इनटू द मोस्ट नोटोरियस कंसंट्रेशन सेल, वहां पे इसने कोई 4 साल के करीब जो है वक्त गुजारा. ये वो सेल थे कि जिसके अंदर ये रिकॉर्ड पे था कि whosoever entered they hardly have a chance that they can come out survival out of that. लेकिन इस शख्स के साथ अजीब वाकया हुआ कि ना सिर्फ इसने उसकी जो हार्डशिप्स थी उस कंसंट्रेशन कैंप की, जो कि इसे पूरी जगह ट्रांसफर भी करते रहे, एंड ही वाज बीइंग, वो सारी सफरिंग से गुजर के इसने किताब लिखी. उस बुक का टाइटल है जो इसमें है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग. मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल. 1940s में उसने ये किताब लिखी. और इस किताब के अंदर जो उसका मैसेज था, इट वाज सो प्रोफाउंड, सो इम्पैक्टफुल कि मिलियंस ऑफ कॉपी दुनिया भर में सेल हुई. और फिर बाद में जाके जो है वो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर भी देता था. इसने एक टर्मिनोलॉजी कॉइन की जिसको इसने कहा लोगोथेरेपी. उसने उसका जो सम अप है, जो मैं समरी असल में आपकी तवज्जो जहां पे मैं लाना चाह रहा हूं, वो समरी क्या है. उसने ये कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे हाईलाइट कर रहा हूं, उसने कहा जो इंसान की जिंदगी में इवेंट्स होते हैं, वाकयात होते हैं, हवादिस होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता. They don't carry any sort of meaning. All the events which happened in our life except the meaning which we assign to it. जो वाकयात हैं उनके कोई मीनिंग नहीं है except the meaning which we assign to it. तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि what is the meaning, अगर आपके पास पेन पेंसिल है, या if you don't have, just be very transparent with yourself. My question to you, what is the meaning of COVID-19? It comes to you. What is the meaning you have assigned to COVID-19? What is the meaning? What is the meaning instantly came into your mind? So some of the people might say, oh, it was a very challenging situation because it means that we are going to lose our job. Some people say, oh, it's a very difficult situation for the whole world and we didn't know whether we are going to survive for a period of time or not. Oh, it was a total disastrous situation for myself and my family because the kids are not going to school. I'm not pretty much sure whether I'm going to have a job, etc. And for some people, they say, if we are being in the similar situation, this is an opportunity to scale up
our sense of contribution towards the society, because this event never happened in hundreds of years back in the society, and this is not going to be repeat again, inshallah. But we are in the defining moment of history, and whatsoever I'm been experiencing, if I get older up to that stage where my grandsons and granddaughters is going to ask me a question, Dad, when you are being in that situation, what you are been doing, at least I should have an answer at that moment in time when the people are being feeling depressed, demotivated, they are being in a state of crisis. I was being there in bringing a bit of positivity in the life of the people. I will feel happy about it. So when I talk about from this perspective that COVID-19 is an opportunity for myself to scale up my contribution, alhamdulillah, my voice is reaching to you in this auditorium right now. So my dear friends, the question what I'm going to say, events do not have any meaning except the meaning we assign to it. If you are going to assign an empowered meaning to any of the challenge in your life, you had a different response altogether. But if you are going to assign a disempowered meaning to that, then you don't have any motivation, you don't have anything out of it. When early start of this COVID-19, I was being in the similar situation when I tune up the TV and been listening throughout the day what is happening around different part of the world. And honestly speaking, it has given me the height of my depression at that time, which I never faced, but it was just been for the couple of weeks. And then instantly I thought, Kamran, just wake up. You are wasting your time. You are making your life miserable because you are being cordoned off in your home. So what you can do while sitting in your home? And that was a question. What is your opportunity you can do while you are sitting in your home? This is your call. This is your opportunity. And I must say that the scaling up of this activity happened that I was never dreamed of. I can talk to thousands and thousands of people while sitting in my home. I was never thinking about that. So what meaning you assign to it? That is $1 million question I'm going to leave for you. And if not only this COVID-19, अगर आपको जिंदगी में कोई चैलेंज आता है, सबसे पहले उसके ऊपर अपने से ये क्वेश्चन पूछें, what meaning I'm being assigning to it. मुझे याद है मैं 2008 में इसी रेफरेंस से मेरे वाले साहब की वफात हुई 2008 में, एंड आई वाज बीइंग वेरी, जैसे एक होता है आप एक अनसर्टेनिटी में होते हैं, बड़ी आपकी अजीब सिचुएशन होती है, कुछ दुख की कैफियत, कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ आपको यकीन नहीं आ रहा होता है, यू हैव बीन इन द हाइट ऑफ दैट. मुझे याद है एक हमारे दोस्त हैं, उनका मुझे एक एसएमएस मौसूल हुआ. वो एसएमएस में क्या था, मैंने जैसे उसको ओपन किया तो उसमें लिखा होता, कामरान, यू must have that belief that your father have gone to a better place as compared to this world. Now, ये जो एक एसएमएस था, इसने मेरे लिए मीनिंग को बदल दिया. The same event, and I was pretty comfortable. I said, oh yes, this is right. So meaning what you assign, that is more important. अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब हम इसको कैसे एज ए फार्मूले की शक्ल में कैसे कर सकते हैं. देखिए, हमारे जहन में अल्लाह ताला ने एक खास एक मैकेनिज्म दिया है. मैं आपसे कहूंगा आप इस मैकेनिज्म को आप इसको गूगल कीजिएगा, इसको पढ़िएगा इसके बारे में. इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको कहते हैं रैस. हमारे दिमाग में एक रडार है. वो रडार क्या करता है कि जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं वो उसको एक्सपैंड कर देता है. क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हेन यू असाइन मीनिंग से क्या मुराद है, व्हेन एवर वी असाइन अ मीनिंग कंट्रोल आवर फोकस, एंड वेयर द फोकस गोज द एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स दैट. So for example, if I have given an empowered meaning, this is an opportunity for me to contribute up to my extent possible. It means that my focus has been expanded in that domain and I'm started looking for the opportunities which have been there, and that has energized me. So the meaning you assign, your RAS active onto that, and then you started controlling onto it. आपने कभी इसका जाती मुशाहिदा किया होगा, बाज़ आप जिंदगी में कभी देखें कि आप रैस के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं. आपने कभी जाती कोई ऐसी चीज हो, आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया हो, कोई परचेज आपने की, कोई आपने कोई इक्विपमेंट परचेज कर लिया, गाड़ी परचेज कर ली, मोटरसाइकिल परचेज कर ली, कोई समथिंग यू हैव बीन वेरी स्पेसिफिक, आपने उसको सर्च किया एंड देन यू हैव बीन बाय दैट. आप एक्सपीरियंस करते हैं कि द मोमेंट यू बीन गॉन थ्रू दिस परचेजिंग प्रोसेस एंड यू ओन दैट, आपको उस जैसी सिमिलर चीजें बहुत सारी रोड पे नजर आनी शुरू हो जाती हैं. द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज योर रैस हैज नाउ बीन एक्टिवेटेड ऑन टू दैट पार्ट. अब मैं आपसे ये कहूं कि ऑल्दो इट्स अ बिट डार्क ओवर हियर, लेकिन अगर हम अगर सोचें इस वक्त, अगर आप इफ यू कैन सी अराउंड द थिंग,
मैं आपसे कहूं कि आर यू बीन एबल टू सी और यू कैन फोकस ऑन ओनली द ब्लू कलर इन दिस रूम? अगर मैं आपसे कहूं जस्ट लुक अराउंड, जस्ट सी वेयर इज द ब्लू कलर, जस्ट फोकस ऑन द ब्लू कलर, wherever you can see the blue color is around, just look into that. We are doing an experiment in which we can reactivate our RAS. Just look around where the blue color is, only the blue color. So I can see even the bottles which are being there, it has the caps and it's having a blue color over there. You might have seen some of the other stuff over there. So when you are been focusing on to the blue color, now you have been focused onto that, your RAS is totally locked into it with the concentration. You can see even what you can observe right now, the phenomena कि अगर कोई चीज मामूली से भी कोई चीज है, कोई एड है, कोई टेक्स्ट है, कोई बॉटल है, उसका जो ब्लू कलर है वो भी अब मल्टीप्लाई हो रहा है अपनी इंटेंसिटी में, आपके सामने उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर मैं इसी को एक्सपीरियंस ये करके आपसे कहता कि अब आप आंखें बंद करें एंड नाउ टेल मी वेयर इज द ग्रीन कलर इन योर रूम, तो इंस्टेंटली आपको महसूस होगा कि आपका जो माइंड है वो टोटली ब्लैंक है, बिकॉज यू हैव जस्ट फोकस ऑन टू द ब्लू कलर एंड यू आर नॉट बीन सर्टन वेयर द ग्रीन कलर वाज इनसाइड, बट इफ यू विल सर्च अराउंड यू कैन सी दैट। देखिए ये फिनोमिना में क्या इसमें बात कर रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और उतना ही ये खतरनाक फिनोमिना भी है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि मैंने जिस चीज के ऊपर अपने फोकस को करूंगा, इट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई, इट इज गोइंग टू एक्सपैंड अराउंड इनटू दैट। लेकिन अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा अपने फोकस को, तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? जरा इमेजिन करें कि आप ऑफिस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने इत्तेफाक से या अपनी हैबिट में या अपनी रूटीन में आपने टीवी को ऑन कर लिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, और टीवी पर आपने वो न्यूज सुनी, और न्यूज जो है अनफॉर्चुनेटली हमारी 99% जो है वो जितनी ब्रेकिंग न्यूज होती है वो नेगेटिव न्यूज होती हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सनसनी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है। Now, while you are being preparing for the office, you have listened to something which has gone a negative connotation with that. अब मुझे ये बताइए कि your RAS is now locked on something of negative. होता क्या है? Once you come out of your home, maybe जो आपको अपनी गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है वो हो सकता है वो आपको ज्यादा गंदी नजर आए, आपको लगे यार ये क्या हुआ, ये तो इसको किसी ने सही तरीके से साफ नहीं किया। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे वो कूड़े के ढेर भी नजर आ रहे हैं, आपको एक लंबी क्यूज भी मिल रही हैं रास्ते में, एंड द ऑफिस यू केम इन विद दिस कनेक्टिविटी विद दैट RAS, the moment you open up your mails might be some nasty mails waiting for you. The question what I'm trying to emphasize is, अगर आप इसकी रूटीन को डिफरेंट कर दें, मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताने लगा हूं। सबसे पहली बात यह है, जो मॉर्निंग टाइम है, यू हैव टू कंडीशन योर RAS टू एक्सेप्ट समथिंग ऑफ पॉजिटिविटी विद इन योरसेल्फ। मॉर्निंग आवर्स आर द मोस्ट क्रिटिकल आवर्स। आप किसी फेमस, किसी लीडर, किसी इंस्पिरेशनल आदमी की आप उसकी लाइफ हिस्ट्री उठाएं, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाएं, हमेशा वहां पे होगा दे ऑलवेज स्टार्ट विद द डे विद समथिंग इंस्पिरेशनल, समथिंग मोटिवेटिंग, समथिंग व्हिच दे गिव देम अ किक फॉर द डे। उसमें वो क्या करते हैं, you can either listen to something inspirational, you can read something inspirational, or you can do something which actually kickstart your day with the thing. Some of the rituals which are very positive, actually they condition themselves to be positive. So for example, if you feel like I have to start my day, there are some of the people I have talked to them, they told me they had a gratitude journal with them. So they have made a gratitude journal, that how many blessings which Allah subhanahu wa ta'ala has given them in their life, one by one, they said they read through it. So that has given them enough charge that they can start up the day. So when they are conditioned with that positivity and with that attitude of gratitude, now any challenges which it come to on their way, maybe on the road, maybe in the office, maybe from the colleague, I would not say that the challenges go away. मैं ये नहीं कह रहा कि challenges खत्म हो जाते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने ये कहा कि don't wish that your problems and your challenges become smaller. Don't wish. Rather wish that you grow larger than your problems, you grow larger than your challenges. मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि जब हम अपनी जिंदगी में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लेकर आते हैं तो हमारी कैपेसिटी इन चैलेंजेस को फेस करने की बढ़ जाती है। हमारे पास वो कैपेसिटी आ जाती है कि हम हर चैलेंज को डिफरेंट रीफ्रेम कर सकते हैं, हम उन ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को हासिल नहीं है। सो आवर कैपेसिटी हैज बीन एनहांस। एक और चीज ज़हन में रखिएगा, जो लोग अचीवर्स होते हैं हाई जिंदगी के अंदर,
आप उनको कभी कंप्लेनिंग नहीं करते हुए देखेंगे। जो सही मायनों में लोग जिंदगी में बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करते हैं, वो उनके पास अगर शुक्रगुजारी, क्योंकि शुक्रगुजारी का रवैया और कंप्लेन ये दोनों एक दूसरे की मुतदाद है। यू कांट हैव बोथ द इमोशन एट द सेम टाइम इन योर हेड. Either if you are having an attitude of gratitude, or either you have been on the blaming and complaining. But what I would say, if you forcefully focus yourself onto that. एक एक्सरसाइज मैंने हाईलाइट करता हूं इस बात को, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज पेड मी बैक. जो आपका ड्राइव टाइम है, खासतौर पे अगर आपको ऑफिस में आने में 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, आने जाने में बाजू का ट्रैफिक में आप हैं, प्लीज ट्रांसफॉर्म योर ड्राइव टाइम इनटू अ लर्निंग टाइम ऑफ योरसेल्फ. बिकॉज ड्राइव टाइम में बंदे का जहन आइडियल होता है, बिल्कुल उसके जहन में अब किसी की कॉल आ गई, रेडियो सुन लिया, एटसेट्रा. नाउ यू हैव बीन फ्री. इन दैट इंस्टेंस आपको बहुत सारी आपकी फजूल किस्म के जो ख्यालात आते हैं, यू कैन कंट्रोल दैट. रादर यू कैन लिसन टू समथिंग इंस्पिरेशनल और समथिंग विच कैन अपस्किल यू, समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग एनीथिंग विच कैन अपग्रेड यू फर्दर. अगर आप उस पर करते हैं तो आपका माइंड मैग्नेटाइज हो जाता है विद द पॉजिटिविटी एंड यू हैव द कैपेसिटी टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. Alhamdulillah, I've been doing this exercise over the last 20 years. Whenever I'm been alone, driving alone, I never drive alone. I have always have my companions of those CDs earlier in 2000s. Now I can have all of my package on my YouTube, and this is every time I'm educating myself. I would say it has worked wonder in my life. Please choose your time, focus on the things which has been there, which is more important. अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाने लगा हूं. मे बी आई कैन शो इट ओवर हियर एंड वी कैन डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ. मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, इफ यू आर बीन एबल टू सी दैट, और मुझे आप ये बताइएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी. ये मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, तो मुझे ये बताइए इफ यू कैन सी दैट. कैन यू? राइट जी, कैन यू सी व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर? ओके, इसको मैंने लिखा है. कुछ लोगों को ये बी नजर आएगा, कुछ लोगों को ये 13 नजर आएगा. लेकिन अगर मैं इसको डिसाइड कैसे करूंगा? अगर मैं बी से पहले ए लिख दूं और बी के बाद सी लिख दूं तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ए बी का करेक्टर है, उसके बाद सी है. लेकिन अगर मैं शुरू में 12 लिख दूं और आखिर में 14 लिख दूं तो आपकी जजमेंट आसान होगी. आप कहेंगे 12 के बाद 13 आता है, ये श्योरली 13 है, उसके बाद 14 है. दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हम लोग जब ये कहते हैं वी आर बीइंग डिफाइंड बाय आवर सराउंडिंग, हम लोग डिफाइन होते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ. अगर हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, वी मस्ट हैव टू हैव अ पॉजिटिव कंपेनियनशिप अराउंड, बिकॉज दीज आर द पीपल हु सेट दोज पॉजिटिव स्टैंडर्ड्स in our mind, and this is something which we must consciously have to ensure that what we have been doing in that end. अब आ जाते हैं जनाब, अब फॉर्मूला क्या है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में. इफ यू कैन राइट इट डाउन, ये लोगोथेरेपी का जो फॉर्मूला है, यू कैन इंस्टेंटली अप्लाई एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स. वो रिजल्ट्स क्या है? E plus E stand for elephant. E plus I into R is equal to O. If I write it down, I would say E plus I into R is equal to O. Now, if you ask me, what is E stand for? What is E stand for? Can you make a guess over here? So I would say you can see E plus I into R is equal to O. So E stand for events. अब हमारा events पर कोई control नहीं होता. We don't have any control on the events. ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला रहने वाला है, आप इसको नोट कर सकते हैं. Whenever you are been in the situation, you can look into that. E stand for events. Events का हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं है. कोविड का हमारा कोई कंट्रोल कोविड पे नहीं है. What is the next thing? I. I stand for interpretation. इसका क्या मतलब है? उसके क्या मीनिंग में असाइन कर रहा हूं इसको. What meaning I am been assigning to it. Multiply by R. R is my response. किसी ने ये बड़ी प्यारी बात है, the creator has given us a dignity to choose from the choices. The creator has given us a dignity to choose from the choices, but the creator has not given us the dignity to choose the consequence of our choices. तो हमारे पास एक dignity है, we can choose our response. So when you are having a selected positive response, multiply with the positive interpretation of the event,
on the right hand side you can change the outcome which you are facing right now. अगर आप चाहते हैं कि जो आउटकम अभी आपको मिल रहा है, if you feel like यार I feel so much depressed, I've been feeling something is not working, there are deadlines I'm not being able to achieve, there are people who are not appreciating around, I have seen that this world is not going to change, the life is not going to change, the culture is not going to be changed. That is the outcome you see. But I would say you don't have a control on the outcome and you don't have a control on the event, but you can influence that outcome if you will choose that interpretation by virtue of that meaning you assign and multiply by your response, which you can choose. The multiple factor can have a different result altogether. This is the way in which the people are been doing in being successful, and they are striving and thriving. एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, ये आप एक एक्सरसाइज एक कीजिएगा आज. आप जितने इश्यूज आप फेस कर रहे हैं इस वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसको भी आप इश्यू डिक्लेयर करते हैं, टेक अ पीस ऑफ पेपर और उन सब इश्यूज को आप उसमें लिस्ट डाउन करें. 1 2 3 4 5 6 जितने इश्यूज आप समझते हो कि यार इसके अंदर ये मुझे चैलेंज है, ये इश्यूज हैं, जो चीज आपको बॉदर कर रही है, जो चीज आपके लिए स्ट्रेसफुल है, जो भी चीज आपको चैलेंजिंग है किसी हद तक, आप उन सबको लिस्ट डाउन करें. जब आप इसको लिस्ट डाउन कर लें तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि इस लिस्ट में से मान लीजिए आपने 20 आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए. मेरा आपसे ये होगा इस आइटम में से, इस लिस्ट में से उन चीजों को टिक करें जिनके आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, और उन चीजों को भी आप टिक कर सकते हैं जो आपके इन्फ्लुएंस में है. मिसाल के तौर पे आपका टाइम, आप सोचें कि जी जब मैं व्हेन आई एम बीइंग फिनिश माय जॉब ओवर हियर, वो टाइम मेरे कंट्रोल में है. नाउ दिस इज अ टाइम आई कैन प्लान माई सेल्फ हाउ आई टू स्पेंड माई टाइम. Now, when you are been driving time, you can make a choice how you are going to control that. आप ऑफिस में हो, आपको कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस होती हैं, आप ये समझते हो यार मैं क्या करूं, बट एटलीस्ट you don't have a control on the behavior of the other people, but you have a control on your behavior and you have a control on your interpretation. इसने विक्टर फ्रैंकल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी. उसने कहा कि इंसान से आप हर चीज छीन सकते हैं. उससे उसकी आइडेंटिटी छीन लें, उससे उसका पैसा छीन लें, उसका स्टेटस छीन लें, उसकी फैमिली छीन लें. ईच एंड एवरीथिंग यू कैन टेकन फ्रॉम अ मैन एक्सेप्ट वन थिंग, आप उसके उस एटीट्यूड को नहीं छीन सकते. अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन टेक दैट एटीट्यूड फ्रॉम यू. And that attitude has a power, because the positive attitude or the height of your attitude, what you selected, it defines the height of the altitude of yourself. So for example, your attitude as a person, it defines the altitude of you as a person. The attitude of you as a professional, it defines the altitude of you as a person. हमारा attitude, हमारा altitude define करता है. The question is what we are going to leave, that is more important part. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो मैं इस पहले बात को खत्म कर लूं, कि अगर आप उसकी लिस्ट बनाएं तो आपको 20 में से हो सकता है 5 6 7 ऐसे पॉइंट मिले जिनका आपके ऊपर कंट्रोल है, आपका इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर. आपको पता है कि जो खुश लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? दे ओनली फोकस ऑन दोज एरियाज एंड दोज टास्क एंड दोज एक्टिविटीज इन विच दे कैन कंट्रोल एंड दे कैन इन्फ्लुएंस. और आपको पता है दुनिया भर के जो कंप्लेन करने वाले, ब्लेम देने वाले, हसद करने वाले, लोगों के बारे में बुरा सोचने वाले, वो कहाँ पे फोकस करते हैं? दे फोकस ऑन द थिंग विच दे कैन नॉट कंट्रोल एंड दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मंत्रा फॉर दैट. यू आर द बेस्ट जज, यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. आज अपना लिटमस टेस्ट खुद करें, अपनी लिस्ट बनाएं, ऑनेस्टी के साथ टिक करें कि किन चीजों के ऊपर आपका फोकस है. मैं जैसे आपको कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप टीवी को देखते हो, टीवी का बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स, डाटा, इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं. आई कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, I can't do anything. I cannot change the statistics, what has been happening by virtue of that COVID-19. I can't do anything if people are not been complying, but I can control myself. I can control my family. I can influence them. I can influence my company. I can talk to my friend. That's my control. That's my influence. And I've done my job. So the most important thing is, what is your area of control and what is your area of influence? This is going to help you a lot in that instance. एक सेंट की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. बात का लोग कहते हैं कि
हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, हम क्या करें? हम बाहर चले जाएं तो लोगों की नेगेटिविटी सुननी पड़ती है, हम इधर चले जाएं तो लोगों की हम क्या करें? अपने कानों को बंद कर ले। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी गेट अफेक्टेड। वेरी राइट। मैं आपको एक सेंट स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक शख्स है, उसको ऐसी परेशानी थी, बहुत ज्यादा वो डिप्रेस रहता था, बहुत ज्यादा उसे स्ट्रेस रहता था। तो वो ऐसे ही एक किसी सेंट के पास, बुजुर्ग के पास चला गया और उसे कहा कि जनाब, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल जो है शैटर्ड है, और मैं लोगों के रवैयों से और उनकी बातों से और उनके मामलात से मेरी लाइफ इज टोटली ruined. व्हाट शुड आई डू? उस सेंट ने उसे कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसके अंदर उसने 1 स्पून सॉल्ट का उसके अंदर स्टिर किया। उसको कहा कि इसको टेस्ट करो। जैसे उसने उसको टेस्ट किया तो उसको बहुत ही ऑफुल टेस्ट था, तो उसने उसको ऑलरेडी स्पिट आउट किया। उसने कहा तो मैं तो इसको टेस्ट भी नहीं कर सकता, इट्स सो ऑफुल। उसने कहा ठीक है। वो उसको कहा कि चलो अब हम चलते हैं जरा बाहर। वो उसको लेकर बाहर गया और उसके हाथ में बकेट फुल ऑफ सॉल्ट था। वो करीब के किसी तालाब पे गए और उसने वहां पे उस नदी में, तालाब में, उसने पूरी बकेट जो है वो सॉल्ट की डाल दी। और उसके थोड़ी देर बाद उसे कहा कि इसमें से एक ग्लास लो एंड जस्ट टेस्ट इट। उसने उसको टेस्ट किया, उसने कहा इट्स फाइन, इट्स ओके, इवन यू हैव पुट द बकेट फुल ऑफ सॉल्ट इनटू इट। तो उस सेंट ने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा देखो बात सुनो, अगर तुम दुनिया जहान की नेगेटिविटी को देखते हो और तुम्हारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सिर्फ एक ग्लास जितनी हुई, तो तुम्हारी जिंदगी ऑफुल हो जाएगी, यू कांट सस्टेन। लेकिन अगर तुम अपने अंदर मार्जिन ऑफ फॉरगिवनेस उसको एक्सपैंड कर लोगे, तो लोगों की किसी किस्म की हेटर्ड और नेगेटिविटी अगर वो बकेट फुल ऑफ सॉल्ट भी तुम्हारी जिंदगी में फेंकेंगे, योर लाइफ विल नॉट बिटर। I think, my dear friends, this is a lesson for us, that the thing what we can do is the control what we can have within ourselves, and this is more important. And the lesson what I would say in the concluding part, I would say that the length of our career, the number of years which we spend in life does not matter. It is the depth of my life. It is the depth of my career. It is a sense of that contribution which I have been made. It is a sense of that legacy which I have been made. आज आप इन सीटों पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपसे पहले कुछ लोग थे, there were different people and there was a different speaker. After a certain period of time, we have to get rotated. There are going to be a different people sitting, occupying these seats right now. And there would be a different person talking to you at that time or someone else. The point is, when we are given that opportunity, where we are focusing, and the lesson of greatness, what I got, it is not what we take during the process. Greatness ये नहीं है कि मुझे क्या टाइटल मिल गया, मुझे कितने जो है वो मेरे वाह हो गई, कितने लोग मेरे कांटेक्ट में आ गए, कितना मैंने पैसा कमा लिया. This is not. The greatness is what I leave during the process. The greatness is what impact I have left during the process. The greatness is what legacy I have been left during the process. So that when I leave the stage, I have set a different standards. So my dear friends, the question is, we had a single chance with our family. We had a single chance in this job. We had a single chance in this world. And the choice is ours, how we are going to live that life. So I would invite all of you, my humble request, please don't take it, this was not a lecture. There are something, if you apply instantly, the meaning you assign to the event has a powerful thing. If you control your race and you focus yourself on a positive thing, I would not say that the problems will go away. I would say you get a better capacity to handle with that. So the point is, if you want to emerge as a better person in your family, if you would like to enjoy the time with your kids and family, if you would like to become a person of value contributing back to the society in Pakistan and to NAPRA, whatsoever the things you can control or you can influence, only focus on that. You don't need to be put yourself onto that area where you don't have any control and you don't have any influence. In the last, one of the things from my side, my book, which is 24 gold coin, this will reach to you through the coordinators, inshallah, as a PDF version, as a gift from my side. And I have tried to put whatsoever the best I learned in life, going across countries, interacting with thousands of people. Please read it, share it. If you feel anything of value out of it, please apply onto it. And one more thing,
just with the sake of leaving a bit of legacy for my society, for my people, I have started recording my videos and putting onto my YouTube as well. You might get a lot of interesting ideas over there. You can go and search under the title Kamran Ahmed Siddiqui, motivation speaker and coach. It is all meant for you. So, and the last but not the least, please connect me if you have been on the LinkedIn so that we can stay in touch. And once again, thank you so much, all of you, NEPRA. Thank you so much, Chairman Saab. Thank you so much for the coordinating team for bringing my voice over here. And I'm going to highlight that our relationship is not going to be over. Inshallah, at any time, I'm available with any spark of positivity. If I can make, I would say that I have made a bit of difference today. Thank you so much, all of you. One. Let me call him. Kamran, can you come online for a few minutes, please? Online आ जाए 2 मिनट के लिए. ऑनलाइन है सर. वीडियो. अस्सलाम वालेकुम कमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक हूँ जी. अपना कलाम सुना के चले गए. हमारी भी तो सुने, हमारे भी कलाम तो सुनने को मतलब. नहीं सर, मैं जरा पर्दा नशीन हो गया था, मैं वहीं मौजूद था. आप चले गए. हमने कहा आपका शुक्रिया अदा कर दें. एंड आई नो फॉर श्योर यू वर जस्ट वार्मिंग अप. 1 घंटा आपके लिए बहुत कम था और मेरा ख्याल है कि शायद हमारे लोगों में भी कुछ नमी रह गई है. तो आई थिंक विल हैव अ फॉलो अप सेशन. जो आज बातें रह गई हैं वो इंशाल्लाह, क्योंकि फ्राइडे का आपके ऑफ होता है. हमारा ये है कि फ्राइडे को जनरली दिस काइंड ऑफ इनफॉर्मल वर्कशॉप, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ जो फ्राइडे होता है उसमें वैसे ही ऑलरेडी हम लोग वीकेंड मूड में आ जाते हैं या मोड में आ जाते हैं. तो just for my audience, we spent many years together. एक और इंट्रोडक्शन जो कामरान का है वो ये है कि he was my student for a few days. So he's one of my brightest students and I can always vouch for that. Actually FSC के बाद मैंने हमारी जो गवर्नमेंट वाली की होती थी, तो FSC के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी. तो मेरे दोस्त पढ़ाते थे एकेडमी में जहाँ कामरान जाते थे. वो अपॉर्चुनिटी उनको 15-20 दिन की छुट्टी करना चाह रहे थे. तो उनको एकेडमी वालों ने कहा कि ऐसे छुट्टी नहीं देंगे, कोई रिप्लेसमेंट दें. उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की तो 15-20 दिन मैंने वहाँ टीच किया. तो कामरान वाज माय स्टूडेंट देयर. उसके बाद मुझे अबू धाबी में मेरे बच्चे स्कूल में थे, उसी स्कूल में के बच्चे थे ईश्वरबाग में. लेकिन हमारी वहाँ मुलाकात हुई मेरी 14-15 साल पहले, मेरी समथिंग लाइक 10-15 साल पहले. उसके बाद वी गॉट कनेक्टेड और उसके बाद हम लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली मिलते थे. लास्ट वीक मुझे कामरान ने बताया कि दे आर ऑल मिसिंग मी अ लॉट. तो मैंने कहा ये कुछ करते हैं सदेबाब इसका एक वो कंपनी करते हैं. तो बहुत दिन से मैं सोच भी रहा था कि आप लोगों के साथ ये कॉमन चैट करवाई जाए. कामरान इज एक हमारा जैसे अनसंग हीरोज होते हैं, ऐसे एक हिडन टैलेंट है. ही इज माशाल्लाह वर्किंग राइट नाउ. और मैं ये समझता हूँ कि कामरान जैसे लोग जो हैं दे आर द ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज. क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को वहाँ जिंदा रखा हुआ है और हमारे एम्बेसडर्स तो वहाँ कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ही लोग वहाँ पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं. तो हैट्स ऑफ टू ब्रांड माशाल्लाह. और इनको अब हमारा ये काम है कि इनको अपॉर्चुनिटी दे पाकिस्तान में भी इनको, क्योंकि बाहर के लोग हमारे
टैलेंट से फायदा उठाते हैं, तो क्यों ना हमारा अपना मुल्क हमारे टैलेंट से फायदा उठाए। मेरा ये वादा है कामरान से कि अनफॉर्चुनेटली कोविड का इशू आ गया कि इनको ना सिर्फ नेपरा में बल्कि दे पूरे आपको पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड वी नो वी हैव क्लाउड ओवर मोर देन 300 पावर प्लांट्स इन पाकिस्तान। तो मैं आपको और जगह पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन बाकी लोगों का डिफरेंट व्यू है अबाउट कोविड। मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा जो लेसन लर्न मैंने किया है वो दो है। एक तो वी कैन लिव इन अ वेरी सिंपल वे। लाइफ बिकेम अ बिट टू कॉम्प्लिकेटेड बिफोर कोविड। कोविड ने हमें सिखा दिया कि वो मास्लोस की थ्योरी में जो आप सब एक्चुअलाइजेशन में चले जाते हैं, उससे अगर आप नीचे सब के सब सर्वाइवल में भी आ जाए तो सब जिंदा रह सकते हैं। दूसरा सबक जो मैंने लिया वो ये कि वी ऑल आर इक्वल। दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हो या मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, कोविड ने सबको लाके बराबर खड़ा कर दिया। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और इस वक्त सबसे टेरिफाइड जो स्पीशीज है वो ह्यूमन बीइंग्स की है। तो कहाँ हम इतने मॉडर्न हो गए थे कि मार्स पे जाके हाउसिंग की डिस्कशन हो रही थी, लैंड उस पे, चांद पे, मून पे प्लॉट्स बिकने शुरू हो गए थे फ्यूचर में रहने के लिए, और कहाँ हमारा अपना सर्वाइवल अर्थ पे जो मुश्किल हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने कोविड में देखी, जो हम तस्वुर ही करते थे कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि निकाह एक बहुत बेसिक सी एक चीज है, जिसको हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि जब 2 4 5 10 रोटियां ना हो, मेहंदियां ना हो, दूर लड़की की शादियां ना हो, लोग अपनी अपनी भाग में चले जाते हैं बेचारे। तो अब मैंने ऐसे देखा कि कोविड में 4 5 लोगों ने जाके और किसी की बच्ची को वो निकाह पढ़ा कर दिया है, और वो शादियां माशाल्लाह बेहतरीन चल रही हैं। अभी मेरी अपनी भांजी की शादी है और हमने भी तय किया कि 8 10 लोग जाके अगर वो लोग आएंगे फिर, तो ये अनहर्ड ऑफ। हालांकि हमारा मजहब भी ये कहता है, लेकिन हम तो बिल्कुल और तरफ ही चल पड़े थे। तो कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We look forward to another session like this in 2 weeks time. मेरा स्टाफ आपसे इंशाल्लाह बहुत कोऑर्डिनेट करेगा। We have different topics। मुझे पता है, मैं आपकी 24 गोल्ड कॉइन जो बुक है ये मैं अपने पास रखता हूँ, और मैंने भी अभी एक यहाँ पे इनिशिएटिव शुरू किया है, आई एम मीटिंग द फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। पहले मैं एक हाईटेक यूनिवर्सिटी में गया था, देयर वर ओवर 2000 स्टूडेंट्स, और पिछले वीक में गया था एयर यूनिवर्सिटी, जिसमें देयर वर मोर देन 7000 स्टूडेंट्स। तो मैं जाके उनसे भी मिली, टॉक होती है। जाने से पहले मैं टीका चैप्टर आपका पढ़ लेता हूँ, तो दैट गिव्स मी अ इंस्टेंट किक एक्चुअली। जो वो एक कमी होती है ना मेरे अंदर, मोटिवेशन की थोड़ी बहुत अगर रह जाती है, तो मैं वो डोज आपकी किताब से ले लेता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड वी विल इंशाल्लाह हैव यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. सबको मेरा सलाम कहिएगा। Okay. Thank you very much. Thank you.